اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے مشرق وسطی میں تعینات یورپی ممالک کی افواج کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ روحانی نے 3 یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کے معاملے پر شکایت درج کرانے کے بعد یہ دھمکی دی ہے۔ حسن روحانی نے کابینہ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یورپی افواج کو راست طور پر دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح آج مشرق وسطی میں امریکی افواج خطرے میں ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں یورپی افواج بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن چاہتے ہیں کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو طاق پر رکھ کر امریکہ کے ساتھ ٹرمپ ڈیل کی جائے۔ حسن روحانی نے سوال کیا کہ امریکی صدر نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے علاوہ اور کوئی قابل قدر کام نہیں کیا ہے۔ سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است، فردا ممکنه سرباز اروپایی هم در ناامنی باشه. بیایید این امنیت درست کنیم. ما نمیخوایم ناامنی در دنیا باشه. ما میخوایم شماها برید از اینجا، البته نه با جنگ. میخوایم عاقلانه از این منطقه برید. به نفعتون هم است. این آقای نخست وزیر در لندن من نمیدونم چه جوری فکر میکنه، میگه که برجام بذاریم کنار، طرح ترامپی رو بریم اجرا بکنیم. ترامپ جز نقض عهد، جز زیر پا گذاشتن قانون، مقررات بین المللی۔ حسن روحانی نے یوکرین کے مسافر طیارے کو مار گرانے کے لیے ملکی فوج سے مزید وضاحت طلب کی ہے۔ حسن روحانی نے کہا کہ فوج اس بات کی مزید تفصیلات فراہم کرے کہ گزشتہ ہفتے اس نے غلطی سے کس طرح ایک مسافر بردار طیارے کو مار گرایا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس واقعے کے کئی روز بعد تک ایرانی جھوٹ بولتے رہے۔ ایران کے ایک سرکردہ کمانڈر نے کہا ہے کہ یوکرین کا مسافر طیارہ اس لیے غلطی سے نشانہ بن گیا چونکہ ایران کے دشمنوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا تھا۔ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ عامر علی حاجی زادے نے کہا ہے کہ یہ حادثہ پیش نہیں آتا اگر ہمارے دشمنوں نے ہم پر حالات کو مسلط نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے دشمن ذمہ دار ہیں۔ ایرانی کمانڈر نے کہا کہ جب آپ حالات جنگ میں ہوں تو دونوں فریق وار کرتے ہیں اور ہم حملہ کرنے اور حملہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حرکتی بود که دشمن بر ما تحمیل کرد و این کار دشمن بود و در جنگ بالاخره زد و خورد هست دیگه. ما واقعا برای یه زد و خورد رفته بودیم. من این ضربات پی در پی ادامه پیدا خواهد کرد و انتقام این خون شهدا رو از اونها خواهیم گرفت۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی موت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دہشت گرد تنظیم ISIS دونوں جشن منا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ قاسم سلیمانی سے امریکہ کو نفرت تھی، اس لیے انہیں قتل کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دہشت گرد تنظیم داعش دونوں جشن منا رہے ہیں۔ جواد ظریف نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس نے ایرانی جنرل کو صرف اس لیے قتل کر دیا چونکہ وہ قاسم سلیمانی سے نفرت کرتا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ قاسم سلیمانی داعش کے خلاف سب سے زیادہ طاقتور آواز تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کے لیے امریکہ گزشتہ 7 مہینوں سے منصوبے بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایرانی جنرل سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ثقافتی ورثوں پر بھی حملے کرنے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک جنگی جرم ہوگا۔ جواد ظریف نے یہ بھی کہا کہ داعش اور امریکہ میں قربت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف ایک مورچہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ We need to recreate the coalition against Daesh.
because the current coalition against Daesh used the basis of the coalition to kill the most effective anti-Daesh general. So we need a new coalition. जवाद ज़रीफ ने यह भी कहा कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाया जौहरी मुआहिदा एक बेहतरीन समझौता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म वक्त की अहम ज़रूरत है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि खलीजी ममालिक खित्ते के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर गौर करें। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो खित्ते के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर गौर करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात 15 जनवरी को नई दिल्ली में मुनक़दा एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। खलीजी खित्ते में पाई जाने वाली मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में सरगई लारोफ के बयानात गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में मज़ीद कहा कि हम खलीजी ममालिक को ये तजवीज़ करते हैं कि वो सिक्योरिटी के एक ऐसे इज्तिमाई तरीक़ेकार के बारे में गौर ख़ौस करें जिसकी शुरुआत एतमाद साजी की तश्कील के इक़दाम और एक दूसरे को फ़ौजी मशक़ों की दावत देने से की जानी चाहिए। लारूफ ने कहा कि हमें इस बारे में गहरी तशवीश है कि खित्ते में क्या हो रहा है। लारूफ के ये बयानात एक ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब इराक में ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाकत और उसके जवाब में ईरान की तरफ से इराक में तैनात अमेरिकी फोर्सेस पर होने वाले मिसाइल हमलों ने पूरे खित्ते को तशवीश में डाल दिया है। खलीजी ममालिक में इस वक्त बहुत ज्यादा कशीदगी पाई जा रही है। We are very much concerned with what is going on there. There are many ideas floating around. The Americans want a coalition, the Europeans want a coalition with slightly different mandate. Recently we had the military exercises with China and Iran, exercises meant to see how we can ensure the safety of shipping in that crucial area for the world economy. रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की तरफ से खलीजी ममालिक के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म की तजवीज़ पेश किए जाने पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने रूस की तजवीज़ पर दिए गए अपने बयान में कहा कि मुतनाज़ा मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म कानूनी तौर पर बेबुनियाद और एक स्ट्रैटेजिक गलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ नए जौहरी मुआहिदे के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहिदे को ट्रंप मुआहिदे से तब्दील कर दिया जाए। अमेरिकी सदर का कहना है कि वो ईरान के साथ ट्रंप मुआहिदे के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के उस बयान से 100% इत्तेफाक करते हैं जिसमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के साथ हुए जौहरी मुआहिदे को ट्रंप मुआहिदे से तब्दील कर दिया जाए। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो ईरान डील को ट्रंप डील से तब्दील करने के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन अमेरिकी सदर ट्रंप को अजीम डील मेकर करार दे चुके हैं। बोरिस जॉनसन ने 14 जनवरी को अमेरिकी सदर को कहा था कि वो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से बाज रहने के लिए नया मुआहिदा कर ले। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इससे कबल भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ईरान के साथ 2015 में तय पाए जौहरी मुआहिदा खत्म कर दिया जाए और इसके बदले में कोई नया मुआहिदा किया जाए और नए मुआहिदे को ट्रंप डील से बदल दिया जाए। वाज़ेह है कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में ईरान और 5 आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में एक जौहरी मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत ईरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो हसास नौइयत की सरगर्मियों को महदूद कर देगा और जौहरी मुआयनकारों को ईरान में दाखिले की इजाजत देगा, जिसके जवाब में उस पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। इस मुआहिदे में जर्मनी, चीन और रूस भी फरीक हैं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद इस मुआहिदे को नकाइस से भरपूर बुरी डील करार दिया था।
ट्रंप ने एकतरफा तौर पर 2018 में जौहरी मुआहदे से निकलने का ऐलान करते हुए ईरान पर दोबारा इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान और यूरोपीय ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे को लेकर खलीज मजीद बढ़ती जा रही है। ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों की मजीद खिलाफ वर्जियों के ऐलान के बाद यूरोपीय ताकतों और ईरान के रिश्तों में तलखियां बढ़ रही हैं। ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों की मजीद खिलाफ वर्जियों के ऐलान के बाद यूरोपीय ताकतों ने तेहरान के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की बाकायदा शिकायत कर दी है। यूरोपीय ताकतों ने ईरान और 5 आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे की एक शिक के मुताबिक इस मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जियों की शिकायत तय कराने के मैकेनिज्म में ईरान के खिलाफ शिकायत जमा कराई है। अब एक मुश्तरका बयान में यूरोपीय ताकतों ने कहा कि ईरान इस मुआहदे में तय पाने वाली शराइत को पूरा नहीं कर रहा, इसीलिए इस मामले को JCPOA मुआहदे में मौजूद तनाज़ात को तय करने और इस मुआहदे को नाफिज करने वाले इदारे की जानिब भेजा जा रहा है ताकि ईरान मौजूदा मुआहदे की शराइत पर मुमकिन हद तक ज्यादा से ज्यादा हद तक अमल दरामद करने का पाबंद रहे। यूरोपीय ताकतों का कहना है कि हम ये इक़दाम नेक नियति से कर रहे हैं जिसका मकसद JCPOA को बचाना है। वाज़ेह है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी करने पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल कर दिया है। अब खदशा ये है कि ईरान यूरेनियम की ज्यादा दर्जे की अफजूदगी से न सिर्फ रिएक्टर ईंधन बना सकता है बल्कि जौहरी हथियार बनाने की तरफ एक कदम और आगे भी बढ़ सकता है। तेहरान का मौक़िफ़ है कि उसने मुआहदे में तय पाने वाली पाबंदियों को इसलिए मुअत्तल किया क्योंकि अमेरिका ने इसी मुआहदे के तहत हटाई जाने वाली पाबंदियां दोबारा से आयद कर दी हैं। मगर फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का कहना है कि वो ईरान की इस मंतक़ को तस्लीम नहीं करते हैं। ईरान के साथ सन 2015 में तय पाने वाले मुआहदे में ईरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि हसास नौइयत की सरगर्मियों को महदूद कर देगा और जौहरी मुआयनकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त देगा, जिसके जवाब में उस पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ये मुआहदा साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में ईरान, 5 आलमी ताकतों और जर्मनी के दरमियान तय पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक इंतखाबी रैली में ईरान के मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी पर शदीद तनकीद करते हुए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन्हें गाली दी। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को गाली देते हुए कहा कि इस ईरानी जनरल की वजह से बहुत से ऐसे जवान मर्द और खवातीन भी देखने में आते हैं जिनके हाथ पांव ही बाकी नहीं रहे। ट्रंप ने सुलेमानी के बारे में कहा कि इन्हें तो 20 साल पहले ही हलाक कर दिया जाना चाहिए था। खलीजी रियासत कतर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की कोशिशों में है। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने इन कोशिशों की तस्दीक बुध के रोज अपने बगदाद दौरे के दौरान की। अब्दुर्रहमान सानी ने कहा कि कतर इस तनाव में कमी की खातिर अपना किरदार अदा करना चाहता है जिसने अमेरिका और ईरान के साथ साथ मशरिक़ वस्ता के पूरे खित्ते को एक नई जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। यह कशीदगी उस वक्त इंतहाई ज्यादा हो गई थी जब इराक में एक हालिया अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। यूक्रेन ने ईरान से मिसाइल हमले में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के ब्लैक बॉक्स की वापसी का मुतालबा किया है। यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रोसिक्यूटर ऑफिस और सिक्योरिटी सर्विसेज ने ईरानी हुक्काम से तबाह होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स की वापसी का मुतालबा किया है। यूक्रेन के आला सिक्योरिटी हुक्काम और सीनियर तफ्तीशकारों के रवां हफ्ते ईरान के दौरे का इम्कान है, जबकि टीम इस बात का भी तयन करेगी कि ब्लैक बॉक्स के तज्जिए के लिए इसे यूक्रेन की किस लेबोरेटरी में भेजा जाए। ख्याल है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान 8 जनवरी को ईरान ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को गलती से मार गिराया था, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। लबनान में नई हुकूमत की तश्कील के अमल में मुसलसल ताखीर पर मुल्की बैंकों की तंजीम ने तशवीश का इजहार किया है।
लबनानी बैंकों की तंजीम ने बुध के रोज एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस बैरूत में नई हुकूमत के क़याम में बेतहाशा ताखीर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। बैंकों की तंजीम के इस बयान में यह भी कहा गया है कि लबनानी मालियाती इदारे बदहाली का शिकार मुल्की मईशत को बचाने के अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। लबनान में अवामी मुजाहरे भी जारी हैं, जिस दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई मुल्की बैंकों पर हमले करते हुए वहां तोड़ फोड़ भी की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तजवीज पेश की है कि अपनी दीगर जिम्मेदारियां पूरे करने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी मुस्तकबिल में मुल्की पार्लियामेंट ही करे। सदर पुतिन ने बुध के रोज कहा कि वो चाहते हैं कि रूसी सरबराह हुकूमत का चुनाव आइंदा मुल्की पार्लियामेंट की जिम्मेदारियों का हिस्सा होना चाहिए। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि रूस का बहुत मजबूत सदारती निज़ाम अपनी मौजूदा शक्ल में आइंदा भी कायम रहे। उन्होंने बात अपने स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में कही। माहिरीन के मुताबिक पुतिन के मौजूदा सदारती ओहदे की मुद्दत 2024 में पूरी होगी और देखना यह है कि वो तब तक मुल्की निज़ाम सियासत में किस तरह की तब्दीलियां लाना चाहेंगे। पुतिन के खिताब के बाद रूस की हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया है। Ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Я хочу содержательную часть начать именно с демографии. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения. आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बर्फबारी के नतीजे में बर्फानी तूदे गिरने के वाकयात में हलाकतों की तादाद बढ़कर 160 से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिश, सैलाब की वजह से सूबा बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में कम अज कम 114 अफराद हलाक और 80 के करीब जख्मी हुए हैं। दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कम अज कम 83 अफराद हलाक हुए हैं। वादी नीलम सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है, जहां इमदादी कारकुनों ने मुनहदिम हो जाने वाले मकानों के मलबे तले से आज मजीद 21 लाशें निकाली हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से भी इन्हीं वजूहात के बायस दर्जनों हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका के एक मुसाफिर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कई स्कूलों पर तेल गिराया, जिससे तलबा समेत 60 अफराद मुतासिर हुए हैं। तलबा ने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और इस दौरान तैयारे ने तेल खारिज किया, जो कई स्कूलों पर जा गिरा। तैयारे से तेल खारिज होने के बायस कम से कम 60 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें ज्यादा तादाद स्कूल के बच्चों की है, जबकि तेल गिरने से इनकी जिल्द पर खारिश फैल गई और सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आई। अमरीकी एयरलाइन परवाज भरने के बाद इंजन में पैदा होने वाले नुक्स के बायस वापस एयरपोर्ट की जानिब मुड़ी और हंगामी लैंडिंग की, जबकि तैयारे से खारिज होने वाला तेल तकरीबन 6 मकामी स्कूलों पर गिरा, जिसके नतीजे में जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद फराहम कराई गई है। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका में रवां बरस नवंबर में होने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दरमियान अमेरिकी रियासत इवावा में मुबाहिसा हुआ। इस मुबाहिसे में साबिक नायब सदर जो बाइडन, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, सेनेटर एमी साउथ बेंड इंडियाना के मेयर सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न और टॉम ईस्टर ने भी शिरकत की। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट के ख्वाहिशमंद 6 उम्मीदवारों के दरमियान अमेरिकी रियासत आयोवा में मुबाहिसे का इत्माम किया गया। मुबाहिसे में साबिक नायब सदर जो बाइडन, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, सेनेटर एमी क्लोबोचर, साउथ बेंड इंडियाना के मेयर पेट बोटाज, सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न और टॉम स्टीयर्स ने शिरकत की। अमेरिका ईरान कशीदगी और इराक में 2003 के अमेरिकी हमले के मामले पर उम्मीदवारों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने साबिक नायब सदर जो बाइडन को इराक पर हमले की हिमायत करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी की
गलत रिपोर्ट्स के बावजूद जो बाइडेन ने अपने वोट के जरिए हमले का जवाब फराहम किया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख में खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती की हिमायत की है। ख्याल रहे कि सैंडर्स ने इराक पर अमेरिकी हमले की सख्ती से मुखालफत की थी, जो बाइडेन वोट देने पर गलती का एतराफ भी कर चुके हैं। अलबत्ता बहस के दौरान उन्होंने कहा कि बतौर अमेरिकी नायब सदर उन्होंने जंग के खात्मे और इराक से 1.5 लाख अमेरिकी फौज के इनकला में अहम किरदार अदा किया। सेनेटर एमी क्लोबुचर ने कहा कि उन्होंने भी इराक में अमेरिकी मदाखलत की मुखालफत की थी। एमी क्लोबुचर ने कहा कि ईरानी पासदारान इंकलाब कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के अहकामात देने का मतलब खित्ते में अमेरिका को एक नई जंग में मुलविस करने के मुतरादिफ था। मैसाचुसेट्स से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो पहली फुर्सत में मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फौज का इनखला करेंगी। उनसे पूछा गया कि क्या सारी फौज निकाली जाएगी, जिस पर एलिजाबेथ ने कहा कि हमें ये सोच बदलनी होगी कि जहाँ भी दुनिया में कोई तनाज़ा है वहाँ अमेरिकी फौज भेजी जाए। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अमेरिकी अवाम न खत्म होने वाली जंगों से तंग आकर थक चुके हैं। साउथ बेंड इंडियाना के मेयर पेट बोटाज, जो कि अमेरिकी फौज में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ यानी सदर बनने के हकदार हैं, क्योंकि उन्हें दिफाई मामलात का तजुर्बा है। अरबपति समाजी कारकुन टॉम स्टेयर ने कहा कि वो जो बाइडेन से इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली है ही नहीं, लिहाजा अमेरिका अपने आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए बेहतर मंसूबाबंदी करेगा। डेमोक्रेटिक मुबाहिसों का आगाज गुज़िश्ता साल जून में हुआ था, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार शरीक थे। अलबत्ता फंड्स की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर मुतादिद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए थे। मंगल के रोज होने वाला ये 7वां मुबाहिसा था। इसके बाद 3 फरवरी को आयोवा में डेमोक्रेटिक पार्टी के हिमायती अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक तरफ जहां शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पनाह गुज़ीरों और लॉन्ग टर्म वीजे पर यहां रह रहे पाकिस्तानी शहरियों को शहरियत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बुलंदशहर में 20 से ज्यादा ऐसी खवातीन हैं जिनका निकाह हिंदुस्तान में हुआ है और अब वो लॉन्ग टर्म वीजे पर यहां रह रही हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की शहरियत के लिए दफ्तरों के चक्कर भी लगा रही हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। CAA और NPR को लेकर जहां मुल्क भर में अभी भी बहस छिड़ी है, मुखालिफिन लगातार हुकूमत पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और कई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा सड़कों पर हैं, तो वहीं उन तमाम लोगों की उम्मीदें जग गई हैं जो या तो हिंदुस्तान में पनाहगुज़ी हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हिंदुस्तान आए थे। इनमें बहुत सी ऐसी मुस्लिम खवातीन भी हैं जो पाकिस्तान की बेटी ज़रूर हैं, मगर उनका निकाह हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्लिम नौजवानों से हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में भी 20 से ज्यादा ऐसे ही लोग बताए जाते हैं जो हिंदुस्तान में शहरियत पाने के लिए पिछले काफी सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। दस्तावेजों को खंगालती जिन खवातीन को आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की बेटियां और हिंदुस्तान की बहुएं हैं। इनमें से किसी ने 10 साल तो किसी ने 30 साल पहले निकाह कर पाकिस्तान को छोड़ दिया और हिंदुस्तान में ही आकर बस गईं। सिर्फ फाखरा, साजिया या सना ही नहीं, बल्कि बुलंदशहर में इनकी जैसे करीब 24 पाकिस्तानी शहरी बताए जा रहे हैं जो हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए लंबे अरसे से पाकिस्तानी एम्बेसी समेत सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। नाम मुंतज़र फातिमा है और मैं कराची पाकिस्तान शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी यहाँ इंडिया बुलंदशहर अली रज़ा के साथ में हुई है। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और जिससे कि मुझे रहते हुए यहाँ काफ़ी अर्सा समय हो गया है। अब अभी तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली है और हम बहुत परेशान रहते हैं। दिल में हर वक्त हमारे ये डर रहता है कि किस वक्त हमसे ये कह दिया जाए कि आप पाकिस्तान वापस जाइए। गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश है कि हमें नेशनलिटी दी जाए। जी, अली रज़ा नाम है मेरा। मेरी वाइफ है मुंतज़र फातिमा। मेरी शादी कराची पाकिस्तान से हुई थी 20 साल पहले और तभी से हम लोग नागरिकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और हिंदुस्तान में कब से रह रही हैं आप? जी, मेरा नाम फाखरा नौरीन है और मैं पिछले 31 साल से हिंदुस्तान में रह रही हूँ और LTV। पिछले 5 साल से मैंने इंडियन नेशनलिटी के लिए पेपर्स सबमिट करवा दिए थे। 2.5 साल से मेरा पासपोर्ट भी ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ख़त्म हो चुका है और अब मैं नहीं तो इंडियन हूँ और नहीं पाकिस्तानी हूँ।
जहां मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून लागू होने के बाद लंबे अरसे से शहरियत की जद्दोजहद में जुटे हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी शहरियों को भी अब हिंदुस्तानी शहरियत मिलने की उम्मीद जगी है, तो वहीं जिला इंतजामिया की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इन सभी को शहरियत मिल सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नागरिकता के संबंध में जो भी आवेदन आए हुए हैं वो उनकी जांच जो अधिनियम है, जो वर्तमान में कानून है, उनके तहत करके और उनका उन नागरिकता के प्रार्थना पत्रों का उसके अनुसार निस्तारण किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि फाखरा, साजिया और सना जैसी और कई लोगों की शहरियत पाने की ये उम्मीद कब तक पूरी हो पाती है। बुलंदशहर के आला अफसरान का साफ तौर पे कहना है कि नागरिकता की प्रक्रिया के अनुसार सरकार को रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है, जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है उसके अनुसार नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि 20 से 25 साल से लगातार ये सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा रही हैं ख्वातीन, इन्हें नागरिकता कब मिलेगी। कैमरामैन जिशान खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उर्दू, बुलंदशहर।